کرتے ہیں اور ہماری قوم جو ہے اپنے عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھے گی. نہ مودی ہمارا ایشو ہے نہ کوئی ایشو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آگے بڑھیں. فطرت کا قانون ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، لیکن یہ جنگل کا قانون ہو سکتا ہے. انسان اسی لیے اشرف المخلوقات ہے کہ وہ طاقت کے باوجود کمزوروں کا خیال رکھتا ہے، اور یہی چیز انسان کو انسان بناتی ہے. ETV نیوز ممبئی. بنگلہ دیش میں برسر اقتدار جماعت عوامی لیگ کی طلبہ شاخ بنگلہ دیش چھاتر لیگ کے 8 کارکنوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے. فاسٹ ٹریک کورٹ نے چھاتر لیگ کے 13 کارکنوں کو عمر قید کی سزا بھی سنائی ہے. ان افراد کو 2012 میں اپوزیشن کی ہڑتال کے دوران بسوجیت داس نام کے ایک شخص کو ہلاک کرنے کا قصوروار پایا گیا ہے. 2012 میں ایک ہجوم نے تیز دھار والے ہتھیار سے حملہ کر کے بسوجیت داس کو ہلاک کر دیا تھا. عراق میں آج ہوئے کئی بم دھماکوں میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہوئے ہیں. مہلوکین میں 2 پولیس افسران بھی شامل ہیں. زیادہ تر دھماکے دارالحکومت بغداد میں ہوئے. عراق میں رواں سال تشدد کے مختلف واقعات میں اب تک 6,500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. شام کے کیمیائی ہتھیاروں کو روس کی بختربند گاڑیوں میں ملک سے باہر منتقل کیا جائے گا. کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کے ایک غیر معمولی بین الاقوامی آپریشن کے تحت ان گاڑیوں کی امریکی سیٹلائٹ اور کیمروں کے ذریعے نگرانی بھی کی جائے گی. آپریشن کی یہ تفصیلات کیمیائی ہتھیاروں کی پابندی سے متعلق تنظیم OPCW کے منصوبے کا حصہ ہے. اطلاعات کے مطابق امریکہ اس آپریشن کا حصہ ہوگا جو شام کے مسٹرڈ گیس، سیرین اور VX نیریو گیس جیسے کیمیائی ہتھیاروں کو خاص قسم کے آلات سے لیس ایک بحری جہاز پر تلف کرے گا. OPCW یہ آپریشن 2014 کے وسط تک مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. خبر دن بھر میں فی الحال اتنا ہی. 9 بجے آپ سے پھر ہوگی ملاقات. آداب. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ. سستا نہیں، سب سے اچھا. ETV اردو پر اگلا پروگرام. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ. ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ETV کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت. آج پھر ایک خاص ایپیسوڈ کو لے کر ناظرین ہم آپ کے بیچ حاضر ہوئے ہیں. آج ETV کی ٹیم کرناٹک کے ضلع رائچور میں موجود ہے. ناظرین جس آستانے کی آج ہم آپ کو زیارت کروانے جا رہے ہیں وہ چشتیہ سلسلے کے ایک اہم بزرگ حضرت سید شاہ شمس عالم حسین رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے. کیا آپ کی تعلیمات؟ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر. ہندوستان کو صوفیہ کا ملک کہا جاتا ہے. اس ملک کا کوئی خطہ ایسا نہیں جسے صوفیہ نے اپنی تعلیم سے منور نہ کیا ہو. آج جس آستانے کی زیارت ETV اردو کے ناظرین کر رہے ہیں اس کا تعلق سرزمین دکن سے ہے. سرزمین دکن میں جو بزرگ سب سے پہلے ہندوستان کے بالکل جنوبی علاقے میں آئے اور اندرون ملک میں رشد و ہدایت کا مرکز بنے، ان میں حضرت سید تبر عالم بادشاہ کا نام سر فہرست ہے. حضرت سید تبر عالم 1225 یعنی سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیری کے وصال سے 11 سال پہلے واصل بحق ہوئے. آپ کا آستانہ ترچنا پلی میں مرجع خلائق ہے. اس کے بعد جنوبی ہند کی ریاست کرناٹک میں حضرت شیخ عبدالعزیز مکی قلندر المعروف دادا حیات رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے. اس کے بعد سرزمین دکن میں کئی اولیاء کرام شمال سے یا پھر ساحلی بندرگاہوں کے راستے سے آئے اور اشاعت اسلام میں مشغول ہو گئے.
सरजमीन दक्कन को 13वीं सदी में जिस अहम बुजुर्ग के कदम बोसी की सादत हासिल हुई, उनमें कुतुबुल अख्ताब शहंशाह दक्कन हजरत सैयदना शरफुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सरे फहरिस्त है। आप सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के अहद में अपने 70 मुरीदीन के हमराह इराक से हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। इसके बाद सरजमीन दक्कन को जिन सूफिया ने अपने कदम मुबारक से इफ्तिखार बख्शा, उनमें हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज का नाम सरे फहरिस्त है। सुल्तानुल इरफान इमामुल औलिया सैयदुस सादात हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी क़द्दस सिर्रहुल अजीज अलमारूफ हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की शख्सियत दक्कन ही नहीं दुनिया इस्लाम में एक आफताब की सी है। आपकी दक्कन में आमद तुगलक के अहद में हुई। ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज की तालीमात से दक्कन की सरजमीन जिस तरह से मुनव्वर हुई, उसका फैजान हजरत की औलाद अहले सिलसिला और खुलफा के जरिए जारी व सारी है। आपके बाद दक्कन की सरजमीन को जिन अहम सूफिया ने मुनव्वर किया, उनमें कुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्से आलम सरे फहरिस्त हैं। यूं तो सरजमीन दक्कन में अहले सलासिल के तमाम सिलसिले मौजूद हैं और तमाम ही सिलसिलों ने अपनी मकदूर भर सरजमीन दक्कन को इस्लाम की तालीमात से मुनव्वर किया है, लेकिन बहमनी दौर में रायचूर को अपनी तालीम से मुनव्वर करने वाले कुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्से आलम की तालीमात का खास मकाम है। हजरत सैयद शाह शम्से आलम ने जिस अहद में रायचूर को अपनी ज़ियारत का मरकज बनाया था, उसमें रायचूर का इलाका गैर आबाद और इस्लाम की हकीकी तालीमात से ना आशना था। हजरत सैयद शाह शम्से आलम ने अपनी तालीमात और पैगाम हक से न सिर्फ इस इलाके को मुनव्वर किया, बल्कि इंसानियत की खिदमत का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया कि बिला लिहाज कौम व मिल्लत सभी लोग आपके इरादतमंदों में शामिल होते गए। आप हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद से हैं। 25वीं पुश्त में आप हुसैनी सादात से हैं। खुतब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्से आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, इनके आबा व अजदाद सबसे पहले मदीने मुनव्वरा से इराक में तशरीफ़ लाए 600 सदी के अवाइल में। हजरत इनके अजदाद में थे हजरत याहिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर वहाँ से इनकी औलाद इराक, बसरा वगैरह में फैली। फिर कच्छ में इनके अजदाद तशरीफ़ लाए। कच्छ में इनकी बारगाहें हैं। वहाँ से हजरत के सगे दादा हजरत सैयद शाह जहांशेर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ आए और अपनी विलायत को छुपाकर बहमनी हुकूमत में एक फौज के ओहदे पे मामूर हुए। हजरत सैयद शाह शम्से आलम का ताल्लुक चिश्तिया सिलसिले के साथ साथ अशरफिया सिलसिले से भी है। चिश्तिया सिलसिले में 10 वास्तों से आपका ताल्लुक सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज तक जा पहुँचता है। सरजमीन दक्कन में आपसे कब्ल भी इस सिलसिले के बुजुर्गों की आमद हो चुकी थी। हजरत सैयद शाह शम्से आलम की पैदाइश 15 रजब 838 हिजरी को दक्कन के तारीखी शहर गोगी के एक सादात हुसैनी घराने में मुमताज आलिम दीन हजरत चंदा हुसैनी के यहाँ हुई। आपका सिलसिला नसब 22 वास्तों से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जा पहुँचता है। कुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्से आलम के अजदाद का ताल्लुक सरजमीन अरब से है। आपके अजदाद किराम में हजरत सैयद मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हजरत सैयद याहिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4वीं सदी हिजरी के अवाइल में मदीना मुनव्वरा से इराक का इरादा फरमाया। ये वो जमाना था जिसमें ज्यादा से ज्यादा औलिया किराम ने अरब से अजम का रुख किया और इशात इस्लाम के लिए सबसे पहले इराक की सरजमीन का इंतखाब फरमाया। हजरत सैयद मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इराक पहुंचकर अपने अजदाद किराम का फैज आम किया। कुतुब रायचूर के अजदाद किराम में हजरत सैयद याहिया रहमतुल्लाह अलैह बिन हजरत सैयद जैद रहमतुल्लाह अलैह ने 668 हिजरी में मुल्तान का सफर किया और वहीं पर सुकूनत इख्तियार की। यहाँ से आपका खानदान गुजरात के साहिली इलाके कच्छ तक फैल गया। आपके सिलसिले के बहुत से औलिया इकराम के आस्थाने कच्छ में मरजाए खलायक हैं। कुतुब रायचूर के दादा हजरत जहां शेर रहमतुल्लाह अलैह अपनी अहलिया और भाई हजरत सैयद शाह अजब शेर के हमराह बहमनी दौर में गुलबर्गा आए और यहीं पर सुकूनत इख्तियार कर ली। बहमनी बादशाह फिरोज शाह बहमनी आपके कदरदानों में था। उसने आपको फौज में आला ओहदे पर मुकर्रर किया। गुलबर्गा में कयाम करने के बाद हजरत जहां शेर रहमतुल्लाह अलैह ने मौजा दर्रे वाड़ी का रुख किया। यहीं पर कुतुब रायचूर के वालिद हजरत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। हजरत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की 16 साल की उम्र में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज से मुलाकात हुई थी। हजरत बंदा नवाज ने आपको देखने के बाद ये फरमाया था कि ये एक वली कामिल और कुतुब हैं जो औलिया किराम में चंदा की तरह रोशन हैं।
हजरत ख्वाजा के ये फरमाने के बाद आप अपने इसमें शरीफ सैयद शाह जलालुद्दीन हुसैनी के बजाय चंदा हुसैनी के नाम से मशहूर हुए। आपका आस्थाना गोगी शरीफ में मरजाए खलायक है। कुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्से आलम की तालीमात और तरबियत वालिद की निगरानी में हुई। आप पैदाइशी वली थे। आपके कश्फो करामात का ज़हूर बचपन में ही जाहिर होना शुरू हो गया था। जब आपकी उम्र शरीफ 18 साल की हुई तो वालिद माजिद ने एक अजीब व गरीब आपकी करामत देखी 18 साल की उम्र शरीफ में। वालिद माजिद ने फरमाया कि बेटा वजू के लिए पानी लाओ। वजू के लिए आप पानी पेश किए। कव्वे ने दरख्त पर बैठे हुए कव्वे ने उसमें गिलाजत डाली। जलाल की नज़र से हजरत खुतब रायचूर ने कव्वे को देखा तो वो तड़प कर गिर गया, मर गया। वालिद माजिद ने फरमाया कि शम्से आलम हुसैनी इस कदर जलाल, तो फिर फौरन रहमत की नज़र से जमाल की नज़र से हजरत खुतब रायचूर ने कव्वे को देखा, वो कव्वा उड़कर आसमान पर उड़ गया। अब वालिद माजिद ने फरमाया कि ऐ बेटा, तुम अपने मर्तबे विलायत में कमाल को पहुंच चुके हो। अब यहाँ बैठकर अपने वतन में रहकर तुम अपनी विलायत को छुपाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। तुम वतन से निकलो। औलिया किराम का जो मिशन है इस्लाम के इशात, लोगों को हिदायत पहुंचाना, उस मिशन के लिए आप यहाँ से निकल जाओ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत और आज हम मौजूद हैं आपके शहर रायचूर में। नाज़रीन, कर्नाटक वो रियासत है जहाँ पर अहले फलासिल के तमाम सिलसिले मौजूद हैं और जिस आस्थाने पर मौजूद है ये चिश्तिया सिलसिले के अहम बुजुर्ग हजरत सैयद शाह शम्से आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपके कश्फ व करामात इतने हैं कि जिस पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और अब भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों की नजरों से ओझल हैं। आपकी तालीमात क्या है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको भी बताते चले कि अहद बैमनी में आप यहाँ पर आए थे और यहाँ पर जो तामीरात है उसमें उसके नक्श मौजूद हैं। क्या है तामीरात वो तो बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक जाएगी। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बिल्डर्स, बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स की आवाज को देश के सामने लाएगा इंडिया के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट अवार्ड्स का एक खास इनिशिएटिव, एक चार्टर जो दिखाएगा कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर देश, समाज और आम आदमी को तरक्की की एक नई दिशा दिखा रहा है और हर पल बना रहा है देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत। आर काबुल प्रेजेंट्स CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2013। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उत्तरी भारत में मोदी की लहर, पूरी ताकत से बोलेंगे यस वी कैन। क्या ये है आने वाले कल की तस्वीर? लोकसभा चुनाव तक रहेगा बरकरार नरेंद्र मोदी का जादू। देखिए मोदी का मिशन आज रात 9 बजे।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, इस वक्त हम कुतुब रायचूर के आस्थाने पर मौजूद हैं। इसके फन तामीर की बात करें, ये फन तामीर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मशहूर है। इसकी वजह यह है कि इसमें अहद बहमनी के साथ साथ ईरानी तर्ज तामीर शामिल है। क्या हो तर्ज तामीर, आइए डालते हैं एक नजर। हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 36 साल तक इस मकाम पर रियाजत की और इस मकाम से कुरान की रोशनी में इंसानियत की खिदमत का अजीम कारनामा अंजाम दिया। आपका विसाल महमूद शाह बहमनी के अहद में 15 सफर 892 हिजरी में हुआ। आपके विसाल के बाद आपके भतीजे हजरत सैयद शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह आपके पहले सज्जादा नशी हुए। मौजूदा सज्जादा नशी हजरत सैयद अशरफ रजा हुसैनी इस दरगाह के 17वें सज्जादा नशी हैं। हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस दौर में अपनी तालीमात से रायचूर ही नहीं बल्कि दक्कन और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों को मुनव्वर किया था, उस दौर में इस खित्ते में बहमनी दौर की हुकूमत थी। आपका विसाल भी बहमनी बादशाह महमूद शाह सानी के अहद में हुआ था। यही वजह है कि जब आपके विसाल के बाद आपका आस्थाना तैयार किया गया तो इसमें बहमनी दौर के साथ ईरानी तर्ज तामीर को भी शामिल किया गया। हालांकि दरगाह का मौजूदा स्ट्रक्चर कदीम नहीं है, लेकिन इस दरगाह के जिम्मेदारान ने जब आस्थाने आलिया की जदीद तामीर शुरू की तो इस कदीम तर्ज तामीर को बाकी रखा। इस आस्थाने की तामीर में आपके अकीदतमंदों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ मुस्लिम अकीदतमंद ही शामिल हैं, बल्कि गैर मुस्लिम अकीदतमंदों ने हर मकाम पर अपने फैयाजी का सबूत दिया है। बहमनी सलातीन की जो भी तर्ज तामीर रही हैं वो ईरानी मुतासरा रही हैं। ईरान के इंजीनियरों ने इसकी तामीर की है और मस्जिद का आप ओरिजिनल हिस्सा उसका जो स्ट्रक्चर का आप मुशाहिदा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि तर्ज तामीर मुकम्मल ईरानी तर्ज की है। और उसके बाद जो तोसी हुई है वो तो हालिया दिनों जो आज के इंजीनियर्स वगैरह ने इसकी तोसी की है। और ये बारगाह का भी जो मामला आपके सामने है, उस वक्त जो कदीम बारगाह थी उसमें मस्जिद तोसी भी हुई है, गुंबद की तामीर हुई है और ये तमाम आराइश और ज़ेबाइश का काम भी हुआ है जो काबिल दीदनी है। ये जदीद काम है। हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कर्नाटक वक्फ बोर्ड में दर्ज है। ये दरगाह एक वसी कैंपस में है। दरगाह कैंपस में एक खूबसूरत मस्जिद के साथ हौज और जायरीन के क़याम ताम के लिए इंतजाम किया गया है। इस दरगाह की खास बात यह है कि इसके तमाम इंतजामात और हिसाब को शफाफ रखा गया है। यही वजह है कि इस दरगाह से जो आमदनी होती है इसका एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम तलबा की स्कॉलरशिप में खर्च होता है। उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले तलबा की माली इमदाद दरगाह ट्रस्ट एक जमाने से करता आ रहा है। कि वो इदारा जात मसाजिद और दरगाहें जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख से जायद है, वो अपनी आमदनी का 20% हिस्सा कम से कम रिफाही कामों में खर्च करे। तो ये बात बाइस फख्र है इस बारगाह के लिए कि ये एलामिया आने के बाद हैदराबाद कर्नाटक में ये पहला इदारा था जिस पर हमने अमल किया और हम अपनी आमदनी का 20% हिस्सा हर साल उर्दू मीडियम के गरीब नादार तलबा को महकमे तालीमात से उसकी फहरिस्त मंगाकर उसकी जांच पड़ताल करके हम उनको तालीमी वज़ाइफ जारी करते हैं और जिसका हम सालाना ऑडिट हम बराबर करते हैं। हिसाबात वक्फ रूल्स के तहत जो हिसाबात रखने के तरीके हैं उनके तहत हमारे पास हिसाब किताब है। ऑडिट हर साल होता है और अखराजात आमदनी और अखराजात के एस्टीमेट वगैरह की मंजूरी हम वक्फ बोर्ड से हासिल करते हैं। 100% हमने इस बारगाह के मामलात को अकाउंटेबल किया है। हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंदों में तमाम कौमों के लोग शामिल हैं। यहाँ के शोरा को आपके आस्थाने से खास निस्बत है। हर साल उर्स के मौके पर आस्थाने आलिया पर तरही मुशायरा और नातिया मुशायरे का एहतमाम किया जाता है, जिसमें मुल्क के मुमताज शोरा अपना कलाम पेश करते हैं। है मक़सदे हयात खुदा की रजा मिले, है मुद्दुआ मेरा दरे खैरुल वरा मिले,
ہے مقصد حیات خدا کی رضا ملے، ہے دعا میرا در خیر الورا ملے، دربار مرتضی کی زیارت نصیب ہو، پھر درگاہ امام شہ کربلا ملے، روحانی حکمران غریب النواز ہے، اجمیر پہنچ اور در خواجہ شاہ ملے، میں اشرفی ہوں مل فیضان سلسلہ، پہنچوں کچوچا اور در اشرف پیا ملے، اس در کے بعد حاضری گوگی کی ہو نصیب، اس در کے بعد حاضری گوگی ہو نصیب، چندہ حسینی کا در حاجت روا ملے، چندہ حسینی کا در حاجت روا ملے، چشتیاں روشنی سے منور جہان ہو، چشتیاں روشنی سے منور جہان ہو، دربار شمس عالم نور خدا ملے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت، اور آج ہم موجود ہیں قطب رائچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر، کہ آپ کی تعلیمات جو جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک، جائے دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। प्री फैब्रिकेटेड घर देकर सरकार ने पीड़ितों को दिया आशियाना। 2 लाख के मुआवजे की अतिरिक्त राशि को बढ़ाकर किया 7 लाख। तबाह हुई फसलों से निराश किसानों का सरकार ने थामा हाथ। उचित मुआवजा मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आपदा में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उसका मुआवजा दिया, जिसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं। 1 जून 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावित परिवारों के विद्युत बिल और जलकर को सरकार ने किया माफ। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अपने बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा से क्षतिग्रस्त 2420 मार्गों में से 2402 मार्गों को खोल दिया गया। खुशहाल उत्तराखंड का पुनर्निर्माण संकल्प है हमारा। 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने पर हम मौजूद है, ये आस्थाना हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नजर। खुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के रायचूर में कदम रखने के बाद रायचूर इस्लाम की इशाअत का एक बड़ा मरकज बन गया। आपने 36 साल तक रायचूर को अपनी तालीमात से मुनव्वर किया। इस तालीम में आपने इंसान इंसान के बीच फर्क करने की सख्त सरजनिश की। आपकी तालीमात खास का ही असर है कि आस्ताना आलिया पर सुबह नमाज फजर के बाद से अकीदतमंदों की जो भीड़ लगती है वो बाद नमाज इशा यानी आस्ताने का दरवाजा बंद होने तक जारी रहती है। खुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ से जिस तालीम के सिलसिले को जारी किया था, इसका सिलसिला आज भी जारी है। हर वली का मकसद यही होता है कि इंसान सही मानों में राह इंसानियत पर कायम हो। इंसानियत की बुनियाद आपसी मोहब्बत पर है, सही उसूलों पर है, अल्लाह रसूल के जो बताए हुए तालीमात हैं उन तालीमात पर अमल करने पर है। और औलिया किराम ने अपने दर से हर आने वाले साइल की किसी की ज़ाहिरी मुरादों के लिए दुआ फरमाई, किसी की बातिनी मुरादों के लिए दुआ फरमाई। यही उनकी तालीमात है और उस तालीमात को आम करने के लिए इस आस्थाने में शब रोज काम किया जाता है और गैर शरई अहकाम से और गैर शरई उसूल से यहाँ सख्त मुखालिफत की जाती है और उससे रोक कर इंसान को सही रास्ते पर बताने की हम लोग कोशिश करते हैं। हज़रत शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इंसानियत का पैगाम ये था कि उनकी तालीमात और उनके मलफूजात से ये ज़ाहिर होता है कि इंसान अपने नफ्स की अना को बालाए ताक रखकर खुदा की बरतरी को माने, खुदा को अल्लाह अकबर माने तो अपनी किबरियाई का खातिमा हो जाए। और जब अपनी किबरियाई का खातिमा हो जाए तो लोगों में बड़ा छोटा ऊंच नीच का कोई इम्तियाज़ ही न रहे, सब बराबर रहें। और अगर इंसान में कोई फौकियत है, बड़ाई है इंसान को, तो अल्लाह के डर और परहेजगारी में उसमें बड़ाई है। इल्म से इंसान बड़ा है, परहेजगारी से इंसान बड़ा है। ये दो चीज़ें अगर नहीं हैं तो इंसान बड़ा नहीं है। रायचूर का इलाका मौजूदा में रियासत कर्नाटक का हिस्सा है, लेकिन सुकूत हैदराबाद से कबल ये इलाका रियासत हैदराबाद का अहम हिस्सा था। हर साल 14 सफर से 16 सफर तक खुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है। दक्कन के मशहूर व मारूफ उर्सों में यहाँ के उर्स को भी खासी अहमियत हासिल है। 15वीं सफर की शब में हजरत सज्जादा नशीन क़िबला संदल माली की खिदमत अंजाम देते हैं। सुकूत हैदराबाद से कबल उर्स शरीफ का एहतमाम शाही अंदाज में होता था। निजामुल मुल्क आसिफ जा सादिस ने अपने एक फरमान के जरिए ताल्लुकदार, तहसीलदार और दीगर आला हुक्काम को बनफ्स नफीस संदल माली में शिरकत लाजमी कर दी थी। संदल माली के ऐन वक्त 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, जिससे सारे शहर को मालूम हो जाता था कि अब संदल माली अंजाम पा रही है। संदल का जुलूस रिवायती अंदाज में निकाला जाता था और चरागा के दिन एक रोज की सरकारी तातील आम हुआ करती थी। इस दौर में भी खुतुब रायचूर के शाया निशान उर्स की तकारीब मुनक्किद होती हैं और तकरीबन 3 हफ्ते तक जारी रहती हैं। उर्स शरीफ के मौके पर यहाँ पर ज़ायरीन का हुजूम होता है। आपके अकीदतमंदों में बिला लिहाज कौम मिल्लत तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू, हर मजहब के लोग जो है ना इसके बड़े अकीदतमंद हैं और जो भी आते हैं उनकी जो मुरादें हैं वो हैं यहाँ पर जो है ना पूरी होती हैं। मैं बेल्लम गोपाल रेड्डी, मैं मुन्नूर समाज के रहने वाला हूँ। यहाँ हमारे भाई लोग हिंदू मुस्लिम क्या अभी ये नहीं, सब जने मिलके ये दरगाह को हाथ है। ये दरगाह को क्या है, हम शाला लेते 4 डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा नाम है ये शंशादाब दरगाह का हमारा आशीर्वाद।